Hey, hello, welcome. So, let me tell you where we are. So last time what we have done in three videos is we talked about the vector space, we talked about the subspaces, we talked about the column space, right? Now we will be looking at problems based on those topic, right? So we will solve a few problems based on this chapter, that is the spaces of vector. Then in next video we will move to next topic, that is the null space, right? And yeah, that is what. So let's start. Okay, so let's start with this problem number one. So this problem is talking about a different vector space, that is M. और इस M वेक्टर स्पेस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि जो भी वेक्टर्स होंगे वी कैन टेक दिस वेक्टर एज वी कैन टेक दिस मैट्रिक्स एज अ वेक्टर, राइट? सो हम लोगों ने क्या देखा था कि ये वेक्टर का जो आइडिया है ना, वेक्टर्स तक ही नहीं रहता है, दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर फील्ड्स, राइट? वी कैन टेक अ फंक्शन एज अ वेक्टर. We can say that this vector indicates that f1x, right? So we have given this matrix A is a vector in the space M. So और ये जो स्पेस M है, so कोई भी मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है, राइट? सो कोई भी वेक्टर स्पेस M है एंड दैट पर्टिकुलर स्पेस कंटेन्स all the 2 by 2 matrices, राइट? अब इस पर्टिकुलर स्पेस में से मुझे एक पर्टिकुलर कोई एलिमेंट दे दिया गया है ए, राइट? बिकॉज दिस वेक्टर स्पेस इज गोइंग टू कंटेन all the 2 by 2 matrices, right? And that could be infinite number of matrices, right? उसमें से मुझे अब क्या किया गया है, आई हैव गिवन दिस मैट्रिक्स ए एलिमेंट, इस एलिमेंट को मुझे उस पर्टिकुलर स्पेस से पिक करके दे दिया गया. देखो हम लोग, मैं कैसे हमेशा से लेक्चर से स्टार्ट करता, अगर मेरे पास कोई आर स्क्वायर स्पेस है या डिफरेंट वेक्टर स्पेस है, राइट? तो मैं हमेशा बोलता था कि इस स्पेस से आई हैव टेकन ए वेक्टर दैट हैज़ द 2 कंपोनेंट. सिमिलरली ये एक वेक्टर स्पेस है एंड आई एम सेइंग दैट आई हैव टेकन अ मैट्रिक्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्पेस, right? Write down the zero vector in this space. So what will be the zero vector in this space? So zero vector would be simply with all the elements of matrices 0, right? And the vector half and the vector minus a. So vector half of a, this vector will be simply scaling, we can scale it, right? So -1 -1 and 1 and 1. And what will be the minus a? Again we can scale with the minus a, right? Because we can do all these scale operations to vector, right? If we are considering this a as a vector, so this is nothing, just you can say that this is a, right? So we can do all these operations, right? So what will be the minus a is, that will be -2 -2 and 2 and 2, right? Now the question is, now the next part of the question is, what matrices are in the smallest subspace containing a? So वो कौन सारे मैट्रिसेस होंगे, what matrices are in the smallest subspace containing a? So ऐसा कौन सा सब स्पेस होगा और ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा that will contain this matrix A, राइट? तो देखो अगर ये इस वेक्टर को हम A बोल रहे हैं तो इसको आप स्केल कर दो, so that line, this particular line, और अब इन टर्म्स ऑफ अगर मुझे इसमें बोलना है तो C times A will contain, C times A is the smallest subspace, C times A is the smallest subspace that will contain
matrix A, right? So question was what matrices are the, so C टाइम्स A कोई भी ले लो आप, कोई स्केल कर, इस मैट्रिक्स को स्केल कर दो, कोई भी इनफाइनाइट मैंने आप C कोई भी पिक कर सकते हो, right? So what matrices are the small, what matrices are in the smallest subspace containing A? So C times A. Now this is question number 2. So the A part is describe a subspace of M that contains A but not B. So we can easily describe it, right? So one possibility could be maybe we can scale. So we need to find this subspace of M that contains A, right? So C times will contains the A, that could be the one possibility, right? So this will contain A but not B. So you can pick any matrix of this form, right? That will be subspace that is going to contain A but not B. Why? Because if you see the elements, here we have 0 but here we have 1. So this subspace is going to contain A but not B. So that's the answer of the first part. Now coming to this second part, if a subspace of M does contain A, so that means subspace is containing A and B, must it contain I? If a subspace is containing matrix A, that is 1 0 0 1, sorry 0 0, and B that is 0 0 0 minus 1. So if a subspace is containing these two vectors, or you can say these two matrices, then सबस्पेस में क्या क्या आएगा, फॉल करेगा, कोई भी इसका आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले लो. You take any scalar multiplication of this A, C times A and D times B. These are also going to fall within the subspace that contains A and B, right? Or you can say that their linear combination would also fall in the subspace that contains A and B. देखो A कोई वेक्टर है, B कोई वेक्टर है, राइट? सो A और B लेट सपोज करो कि प्लेन होगा, तो इनका जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा दैट विल ऑल्सो बी विद इन दिस प्लेन, राइट? सो अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये आई इज दिस आई इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी. इज दिस आई अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी? So if I take the linear combination of A or B, can I get this 1 1 0 0? Yes, I can get it. How? So depending, because we can pick any value of C and D, right? A is, so C times A is 1 0 0 0 and plus D, B is 0 0 0 minus 1, right? So अब देखो अगर C आप यहाँ पे 1 पिक कर लो और D माइनस 1 पिक कर लो, देन यू विल हैव दिस I. सो डैट मीन्स कि ये I जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है A और B का. C यू कैन हैव 1 एंड D माइनस 1, राइट? yes, you will get this I. So answer to this question is yes. Now coming to part C, describe a subspace M that contains no non-zero diagonal matrices. So मुझे एक M का subspace describe करना है that contains no non-zero diagonal elements. मतलब कि उसी सब स्पेस में कोई भी
नो नॉन जीरो, सो नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट मतलब क्या हो गया, मतलब कि जो भी इसका डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए वो जीरो को छोड़ करके सब होना चाहिए, वो नॉन जीरो नहीं, सॉरी नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो नॉन जीरो मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ जीरो होना चाहिए, ठीक है। ओके, दैट मीन्स कि इफ आई हैव टू राइट दैट पर्टिकुलर सब स्पेस दैट हैव नो नॉन जीरो, so non zero means here we should have value that is not zero, or no non zero means here we should have value that is zero. So I have to write that particular subspace. So मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी मैं डायगोनल एलिमेंट को जीरो जीरो कर देता हूँ एंड वी विल हैव हियर 1 1 एंड c times 1. So answer to this question c. Now you see this question number 3 is talking about the different vector space, right? Here this function we can consider as a vector, this gx we can consider as a vector. Then we will have the vector space of this real functions, right? And we what we are calling that particular vector space is a function of is denoting by f. So f is nothing but a functions of is sorry f is nothing but a vector space of real function or all real functions, right? And what we have given from those vector space is two vector in terms of function. So we have given two functions from this vector space f, that is fx is equal to x square and gx is equal to 5x. So you can think this function as a vector and this gx as a second vector, something like that. And the combination, so इनका जो combination है that is what, so how we are taking the combination, so we are scaling this vector or this function by 3 and we are scaling this vector or a function by this 4, and what we are doing is so minus 4, and what we are doing is taking the linear combination, right? And we are calling this as hx. So the combination is the function hx is equal to, so this hx will be also in this particular vector space, right? In this space f, right? So what it will be, so it will be simple, we can put 3 times fx is x square minus 5 times 4 is 20x. So इस क्वेश्चन का मेन मोटो क्या था, just to make realize that we can extend the idea of the vectors into some other fields, I can say, right? How we have extended the vectors operations idea into this matrix, what we have done, we have considered this matrix as a vector, right? And जो भी चीज़ हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं विथ वेक्टर्स के साथ, जो भी ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, अगर वो सारे ऑपरेशन हम सक्सेसफुली परफॉर्म कर दें इन सारे एलिमेंट्स के साथ, तो व्हाट वी कैन कॉल दैट एज अ दैट पर्टिकुलर स्पेस विल क्वालिफाई फॉर द वेक्टर स्पेस. तो यही सब सारी चीज़ें तो हम लोग देखा है ना, ये इन जनरल वेक्टर स्पेस should follow all these 8 rules, right? Okay, now let's move to next question. Now this is question number 4 and what we have to find is which of the following subsets of R cube are actually subspaces. So we have given this vector space that is R cube, 3-dimensional space, and in every question what we have given is the subset of R cube. That means subset of R cube is given, right, for every in each question. So what we have to find that is that subset is a subspace, right? Because we cannot say that every subset is a subspace, right? There is a criteria
दैट शुड फॉलो बाय दी सब स्पेसेस। और क्या था क्राइटेरिया कि इफ अगर कोई भी मैं सबसेट ले रहा हूँ, देन इफ आई from that subset, if I pick any element, if I scale that element, I should have in the same subset. Or if I add two elements from that particular subset, then I should get into the same subset. Or if I take the linear combination of two elements in a subset or n elements in a subset, then again I should get fall back into the same subset. ओवरऑल पॉइंट क्या है कि अगर आर क्यूब वेक्टर स्पेस है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हर एक इस आर क्यूब में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, इसके सेट्स में इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब इससे क्या किया है कि कोई एक पर्टिकुलर सबसेट में देख रहे हैं, ठीक है, एक सबसेट में देख रहे हैं, एंड नॉट एवरी सबसेट इज गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द सब स्पेस। कोई भी सबसेट इसमें से ले लो और उसको बोल दो कि वो सब स्पेस होगा, नहीं। क्या था क्राइटेरिया, अगर वो सब स्पेस है, दैट मीन्स कि अगर मान लेते हैं कि अगर मेरे पास वेक्टर है इस सबसेट में, तो अगर आप वेक्टर को स्केल कर रहे हो, देन दैट स्केल्ड वर्जन शुड बी इन दिस सबसेट। मतलब कि इस सबसेट में आपको मिलना चाहिए स्केल करने के बाद भी, ठीक है। और अगर आप इसका ऐड कर रहे हो टू एलिमेंट्स को इस सबसेट में, देन उनका जो एडिशन होगा वो भी इस सबसेट में होना चाहिए। और यानी तो अल्टीमेटली दो कंबाइंड ऑपरेशन को कर दो, तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी लो, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट आएगा दैट शुड ऑल्सो फॉल इन दिस सबसेट। तो मैं इस सबसेट को क्या बोल दूंगा कि ये जो है मेरा सब स्पेस है, दैट विल क्वालिफाई फॉर द सब स्पेस ऑफ आर क्यूब, राइट। तो अब क्या है कि ये वेक्टर स्पेस दिया हुआ, नाउ यू हैव टू गो थ्रू ईच ऑप्शन एंड यू हैव टू चेक दैट क्या ये सब स्पेस है या नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे कि इस फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है कि द प्लेन्स ऑफ वेक्टर्स विथ b1 इज इक्वल्स टू b2। दैट मीन्स कि क्राइटेरिया क्या गिवन है कि आपके पास जो भी सबसेट के एलिमेंट्स होंगे, उनका जो सारे वेक्टर्स हैं, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट इज़ b1, ये a, और b2 जो होगा मान लो ये भी a होगा, क्योंकि b1 इज इक्वल्स टू b2 दिया हुआ है, और ये b3 सम कोई होगा b3, इसको लेट इट बी b3, राइट। नाउ इफ आई टेक अदर वेक्टर सिमिलर फ्रॉम दिस सबसेट, तो दूसरा वेक्टर क्या हो सकता है, अगर मैं b लूँ b1 को, तो b2 भी क्या होगा, b होगा, एंड दैट वुड बी सम यू कैन से b31 और भी कुछ भी, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली मैं और भी पिक कर सकता हूँ, जैसे c अगर पिक करूँ तो ये c, और ये कुछ भी b32 या कुछ भी नाम ले दो इसका, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ना कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, देन आई शुड गेट बैक इन द सेम सबसेट। वो एडिशन भी जो है वो सेम सबसेट में, और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो भी सेम। सबसे पहले स्केल करते हैं, मान लो कि मैं फर्स्ट वेक्टर को स्केल करता हूँ c से या अल्फ़ा से मान लो, क्योंकि ए बी सी हम लोग यूज कर रहे हैं। अल्फ़ा से मैंने स्केल किया तो a b3, राइट। व्हाट यू विल गेट इज द अल्फ़ा a b3। सो यू सी दिस क्राइटेरिया इज गेटिंग फुलफिल्ड, ये दोनों। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों तो बराबर है, b1 b2 बराबर है। दैट मीन्स कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं फिर से अगेन इस जो क्राइटेरिया है उसमें ही फॉल कर रहा हूँ, मतलब स्केल करने के बाद तो सेम चीज़ हो रहा है, सेम काइंड ऑफ वेक्टर मिल रहा है, सेम वेक्टर मिल रहा है जो उस पर्टिकुलर सबसेट से बिलोंग करेगा। इस सबसेट में कौन सा वेक्टर बिलोंग करेगा, सारे वेक्टर्स जिनका कि फर्स्ट दो एलिमेंट सेम है। तो मेरे पास ये सेम मिल रहा है स्केल करने के बाद भी। अब अगर मैं दो वेक्टर को ऐड कर दूँ, दैट मीन्स a b3 और प्लस b31, then what I will get is the a plus b b3 plus b31. So you see that again these two elements are same. So आप क्या बोल सकते हो कि ये भी वेक्टर जो होगा सेम कैटेगरी में फॉल कर रहा है। मतलब कि आपने स्केल किया
स्केल करने के बाद आपने क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन भी लिया, तो व्हाट यू आर गेटिंग इज दैट यू आर फॉलिंग इनटू द सेम सबसेट. सो दैट मीन्स कि मैं इसको बोल सकता हूँ कि दैट विल बी सब स्पेस ऑफ R cube, right? Now let's check this option number 2. So the plane of vectors with b1 is equal to 1. So आप क्या करो, आपके पास b1 b2 b3 जो है वो कॉम्पोनेंट्स है वेक्टर के, इसको आपको 1 रखना है और कुछ भी ले लो b21 और b31, b2 और b3 को कुछ भी ले सकते हैं. और क्या हो सकते हैं इस सेट से, और कितने वेक्टर बिलोंग कर सकते हैं, और ये भी बिलोंग कर सकता है, इसको 1 रखना है, b22 और b32 और मे बी 1 b23 एंड b33, इस टाइप से, राइट. ये जितने भी वेक्टर्स हैं दैट आर इन द सेम सबसेट, बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, मुझे b1 को 1 रखना है. अब मैं स्केल करता हूँ, तो सबसे अगर ये जो मेरा सबसेट है इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, अगर ये सब स्पेस के लिए क्वालिफाई करता है, दैट मीन्स कि अगर मैं कोई भी वेक्टर को इसमें से स्केल करूँ, सो अल्फ़ा टाइम्स अगर मैं 1 b21 b31, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस अल्फ़ा कुड बी इवन ग्रेटर देन 1, और कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ये अल्फ़ा, राइट. सो व्हाट आई विल गेट इज दिस. तो ये तो स्केल से ही पता चल जा रहा है कि ये वेक्टर जो होगा वो मेरा इस सबसेट में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1 करना है, ठीक है. और यानी तो आप इसको क्या करो, दो वेक्टर को ऐड कर दो. अगर आप ऐड करोगे इन दोनों को, व्हाट यू विल गेट इज 2 टाइम्स, तो 2 आ जाएगा, फिर b21 प्लस b22 b31 प्लस b32, but what I need here is 1. So that is not, this vector is not going to fall into this subset, right. तो ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सब स्पेस क्वालिफाई करने के लिए तो दो बेसिक चीज़ तो होना चाहिए. मतलब मैंने स्केल किया, स्केल करने के बाद भी मुझे इस सबसेट में फॉल करना है, मैंने ऐड किया दो वेक्टर्स को या n वेक्टर्स को, तो मुझे इस सब स्पेस इस सबसेट में फॉल करना, या मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन भी लिया तो मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन का रिजल्ट जो होना चाहिए वो भी इसी सबसेट से बिलोंग करना चाहिए. तो ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है. तो दिस विल बी नॉट अ सब स्पेस ऑफ R क्यूब. ऑल राइट, नाउ सी ऑप्शन को आप कैसे चेक कर सकते हो. लेट मी A, this is B, let me do the C here. So B1 B2 B3 को इस तरह से पिक करना है कि वो उनका मल्टीपल जो है वो 0 हो जाए. तो बहुत सारा तरीका पिक करने का. तो इस सेट में कौन कौन से वेक्टर फॉल करेंगे, 0 1 0 0 1, राइट. 0 कोई भी एक एलिमेंट को 0 रख दो तो दिस क्राइटेरिया विल गेट सेटिस्फाइड, राइट. 0 1 0 1 0 0, राइट. और भी बहुत सारे इसमें वेक्टर हो सकते हैं, राइट. कोई भी एक कंपोनेंट को 0 कर दो और b2 b3 को कुछ भी ले लो, या किसी, ठीक है. अब मान लेते हैं कि मैं क्या करता हूँ ना कि और यानी तो मैं ये भी ले सकता हूँ, ये भी आपके सेट में हो सकता है. क्या, मान लो कि 0 1 1, ठीक है. अब जैसे कि इन दोनों वेक्टर को ही मैं पिक करता हूँ, 1 0 0 और प्लस 0 1 1. अगर इन दोनों में वेक्टर को पिक करो तो व्हाट विल यू गेट इज दिस 1 1 1. अब देखो कि क्या ये क्या ले रहे हैं, ओवरऑल हम लीनियर कॉम्बिनेशन ही ले रहे हैं. अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ दैट मीन्स कि इनका जो रिजल्ट है दैट शुड बी इन दिस सेट, राइट. और इस सेट में और भी फैक्टर हो सकते हैं जो भी इस क्राइटेरिया को फॉलो करे, ठीक है. तो अब देखो ये 1 1 1 है, क्या अब ये 1 टाइम्स b1 1 into 1 into 1 is 0? No, that is not going to be the 0, right. So 1 is not equals to 0. 1 times 1 is not equals to 0. तो दैट मीन्स कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, उससे मुझे एक ऐसा वेक्टर मिल रहा है दैट इज़ नॉट इन द सबसेट ऑफ दिस.
अगर नहीं फॉल कर रहा है तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द सब स्पेस। तो ये भी सब स्पेस नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर क्यू आर एक्चुअली सब स्पेस, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर डी, right? You have given this vector v and w, so we know that these two vectors are in different direction, right? So they are going to, their linear combination will be a plane, right? ये तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है, क्वेश्चन शुरू से ही करते आ रहे। so ये आर क्यूब में क्या किया गया है कि आपके पास देखो 3 डायमेंशनल स्पेस है, राइट? अब इसमें क्या किया गया है कि एक वेक्टर दे दिया गया w एंड दूसरा वेक्टर दे दिया गया है v। तो दोनों देखो दोनों इंडिपेंडेंट है, बट आई डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस दिस इंडिपेंडेंट टर्म एज ऑफ नाउ। वी हैव सेंस, राइट, कि इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या है, ठीक है, बट मैंने आपको एक प्रॉपर वे अभी तक नहीं दिया है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि 2 वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, बट वी हैव द सेंस, राइट? सो दीज 2 वेक्टर्स आर इन द डिफरेंट डायरेक्शन, राइट? अगर वी आपका एक्स वाई प्लेन है, मान लो कि ये एक्स वाई ये है, दिस वन इज वी, राइट? एंड सपोज करो कि ये जो है आपका डब्लू है, तो दिस इज डब्लू, राइट? सो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, व्हाट यू विल गेट इज अ प्लेन, राइट? सो जैसे कि अगर आप क्या करो, तो ये तो बहुत बार हम लोगों ने देखा, इसको मुझे बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सो यू विल गेट अ प्लेन दैट विल पास थ्रू अ ऑरिजिन, राइट? सो दैट इज गोइंग टू क्वालिफाई फॉर अ, तो कोई भी अगर आप देखो इसमें से अगर कोई भी अगर आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, जैसे कि सी टाइम्स वी प्लस डी टाइम्स डब्लू, सो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा that will be a vector and that will be also in the same plane. so कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, स्केल करो किसी वेक्टर को, w को स्केल करोगे तो यू विल बी इन द सेम प्लेन, v को स्केल करोगे यू विल बी इन द सेम प्लेन। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे कोई भी वेक्टर, दैट विल बी इन द सेम प्लेन, so that is going to qualify for your subspace of R cube. So this is subspace of R cube. Okay, now coming to this part E, right? All the vectors satisfies b1 plus b2 plus b3 is equal to 0. So अगर सारे कंपोनेंट्स को अगर आप ऐड कर रहे हो, दैट मीन्स कि मान लो कि मैंने ये -1 ले लिया, ये 0 ले लिया, ये 1 ले लिया, या 1 ले लो, 0 ले लो, -1 ले लो, ठीक है, और या नहीं तो 2 ले लो, -1 ले लो, -1 ले लो, तो इन इस टाइप के वेक्टर्स का पूरा सेट होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि ऑल द वेक्टर सेटिस्फाइंग, जितने भी वेक्टर्स बनेंगे इस टाइप से, सेटिस्फाइंग दिस will be a subspace of R cube, ये क्वेश्चन, right? So how we can do that? now अगर आप कोई भी इसमें से वेक्टर पिक करो, लेट सपोज कोई भी वेक्टर पिक करो, अगर उसको आप स्केल करोगे, अगर इसको आप लेट सपोज इस वेक्टर अल्फ़ा को अल्फ़ा टाइम से स्केल करोगे, इस वेक्टर को 1 0 1 को, राइट? सो व्हाट यू विल गेट, तो बेसिकली पॉइंट क्या है ना कि अल्फा दैट विल गेट मल्टीप्लाई विद दिस वन ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो, फिर एट द एंड सारे कंपोनेंट को जोड़ोगे तो दैट इज गोइंग टू बी द 0, राइट? सो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, दैट मीन्स कि स्केल करने के बाद भी आई एम गोइंग टू फॉल बैक इन टू द सेम सबसेट। जो भी वेक्टर्स आएंगे, तो ये देखो आप -α 0 एंड अल्फ़ा, राइट? तो ये क्या हो रहा है, इनके कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद, सो दैट मीन्स कि ये वेक्टर जो होगा दैट विल आल्सो बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर सेट, राइट, दिस पर्टिकुलर सबसेट। अब जो है लीनियर कॉम्बिनेशन मुझे चेक करना है कि क्या लीनियर कॉम्बिनेशन इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। अगर कोई भी मैं वेक्टर 2 वेक्टर पिक करूँ
इस सबसेट से. एंड इफ आई लेट मी फर्स्ट टेक द लीनियर कॉम्बिनेशन. तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का ऐड कर दूँ सिंपली, so what I will get is maybe 3 minus 1 and minus 2, right? So you see that after taking the linear combination, अगर आप इनको ऐड करो, इनके सारे components को individually ऐड करो, that means कि this one, so that will also be 0, right? So overall point is that आप इस सबसेट से किसी भी वेक्टर को पिक करो, स्केल करो, you will get a vector that is going to belong from this subset. या आप किसी भी वेक्टर्स को पिक करो, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लो, यू विल गेट ए वेक्टर एंड दैट इज गोइंग टू बिलोंग टू द सेम सबसेट. सो ये देखो, अगर कंपोनेंट्स ऐड करके 0 मुझे दे रहे हैं, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स ऐड करके मुझे 0 दे रहे हैं, सो दैट मीन्स कि दैट कैन बी गेट क्वालिफाइड फॉर द सब स्पेस ऑफ आर क्यूब, राइट. अब आप मुझे ये बताओ, एफ में क्या कंडीशन है कि b1 ग्रेटर देन b2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू b3. सो इन एफ व्हाट वी हैव गिवन इज, आपको कंपोनेंट इस तरह से पिक करने हैं कि b1, मान लो b1 में -3 पिक कर लूँ और b2 में -2 पिक कर लूँ एंड b1 में -1 पिक कर लूँ. सो दिस क्राइटेरिया इज गेटिंग सेटिस्फाइड, राइट. दैट मीन्स कि ये एक उस सबसेट का कोई एक वेक्टर होगा. इसी तरह से मैं एक वेक्टर और पिक कर सकता हूँ, दैट इज 3, 2, 1. तो देखो आप, b1 है ना ग्रेटर देन, सॉरी ये 1, 2, 3, सो नॉट दिस वन बट वी कैन पिक b1 greater than b2 greater than b3, or we can also pick so 1, 2, 3. Okay, maybe we can even take one more vector from this set, that is maybe -3, -2 and 0, right. So this criteria is getting satisfied, that is b3 is greater than b2 and b2 is greater than b1. Now if we take the linear combination of these two vectors from this set, so I should get a vector such a way that this criteria should get satisfied. अगर ये satisfied नहीं करेगा तो that means I am not in the same subset, so that will be not qualified for the subspace. But before that, let's check that one. So let's take the minus times of this vector and 1 times this vector. So I am taking the linear combination of these two vectors. So 1 times this vector minus times of this vector, so that will give me 0, 0 and -1 and plus -1 and -0, so that will be -1, right. So what I have done is taken the 1 times of -3, -2 and -1 plus, sorry, -1 times of, so either -1 times of -3, -2 and 0, right. So what I am getting is this 3 plus 3 is 0, -2 plus 2 is 0 and -1 plus -0 is -1. So you see this criteria, इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है, that is this vector, and if you see this b1, b2, b3, so this particular criteria is not getting satisfied. तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन से जो मुझे वेक्टर मिल रहा है, that is out of this subset, so that is not going to qualify for our subspace of R cube. So this is not going to qualify also. So only A, D and B are the subspaces, are the subsets that are the subspaces of R cube. So let me mark what we have done, A, B and C, where we have done C, D and this one is E, and here we have F, right. Okay, now let's
Now look at this question 5. So we have given this matrix space, right? And so दो एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन ए में, और क्या बोल रहा है कि मैं ऐसा कौन सा सब स्पेस लूँ दैट कैन डिस्क्राइब दीज टू एलिमेंट्स, और कौन सा ऐसा सब स्पेस है दैट कैन कंटेन, और द स्मॉलेस्ट सब स्पेस दैट कैन कंटेन दीज टू वेक्टर्स, कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट सब स्पेस है दैट कैन कंटेन दीज टू मैट्रिसेस. सो अगर आप ए में देखो, सो इफ़ यू टेक दिस काइंड ऑफ सब स्पेस, राइट, सो आप क्या कर सकते हो, देखो कैसे पता चलेगा कि मुझे ये सब स्पेस, ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस है दैट इज गोइंग टू कंटेन दिस टू वेक्टर. सिंपल सी बात है, आप ए को यहाँ पे 1 सेट कर दो, राइट, और so not this one but we can take here not a but b here, right, because कैसे, देखो अगर मैं यहाँ a को 0 सेट कर दूँ और b को मैं 1 सेट कर दूँ, राइट, सो आई विल गेट दिस. अगर मैं b को 1 सेट कर दूँ, a को 0 सेट कर दूँ, देन आई विल गेट दिस. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस दैट कैन contain these type of vectors or matrices, you can say, right. Now coming to this b part, so what is the smallest subspace that can describe the smallest subspace of the matrix. So कौन सा ऐसा subspace ले such a way that subspace should contain this matrix, right. So a 0 0, right. Now coming to this C, what kind of subspace will contain all this kind of matrix. So देखो सबसे पहली बात तो इनका डायगोनल एलिमेंट, और ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, मतलब कि एवरी डायगोनल मैट्रिसेस इज गोइंग टू सेटिस्फाई, और एवरी डायगोनल मैट्रिसेस इज गोइंग टू कंटेन सच काइंड ऑफ मैट्रिसेस, राइट. सो सब जो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा दैट विल बी all the diagonal elements, all the diagonal matrices, right. Now coming to this question number 7, let p be the plane in R cube with the equation this. So we have given this equation x plus y minus 2z and this is nothing but a plane, right. और आप इस प्लेन को देखो तो ये ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि अगर कोई भी प्लेन ऑरिजिन से नहीं पास कर रहा है तो वो तो सब स्पेस के लिए ऐसे भी क्वालिफाई नहीं होने वाला है, बिकॉज मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी सब स्पेस है तो वो 100% है कि ऑरिजिन से पास करेगा ही करेगा, क्योंकि जीरो वेक्टर स्पेस जो है वो सारे वेक्टर स्पेस में रहेगा. विदाउट जीरो वेक्टर स्पेस यू कैन नॉट हैव अ वेक्टर स्पेस और यू कैन नॉट हैव अ सब स्पेस, right. So the origin is not in the P, right. Find two vector in P and check that their sum is not in P. So ये तो सब स्पेस नहीं है of R cube, that is for sure. And now तो आप इसको प्लॉट करके भी देख लो किसी भी ऑनलाइन 3D ग्राफ प्लॉटर में, दैट प्लेन विल बी नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, राइट. अब मान लो कि इसमें से कोई भी मैं 2 पॉइंट पिक करता हूँ, मान लो कि जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस प्लेन को. सो वी कैन पिक एनी पॉइंट एक्स वाई जेड, राइट. सो वी कैन सेट मे बी 0 0 -2, राइट. तो एक तो ये हो गया. दूसरा मैं क्या ले सकता हूँ, 2 2 एंड 0, राइट. अब क्या बोल रहा है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ सो सम वेक्टर विल बी, और वेक्टर ये कोई भी हो सकता है, रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर, कैसे, सिर्फ सिंपली आपको 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए, वो सोचो आप, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2, सम इनका क्या हो जाएगा, 2 2 एंड -2, राइट. सो
फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि क्या ये पॉइंट जो है, सबसे पहली बात तो ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे थे ना इस इक्वेशन को। ना इनका जो सम है दैट विल बी 2 + 2 एंड माइनस माइनस प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 4, राइट। सो दैट पर्टिकुलर फैक्टर, इनका जो सम होगा वो इज नॉट गोइंग टू बी द सेम इन द सेम प्लेन, राइट। तो ओवरऑल पॉइंट यहाँ पे क्या है ना कि अगर कोई प्लेन है और वो सब स्पेस नहीं है तो उस प्लेन से अगर कोई भी वेक्टर्स को अगर पिक करें हम तो उनका जो सम होगा दैट इज़ नॉट ऑल्सो गोइंग टू बी इन द सेम ऑन द सेम प्लेन, राइट। सो राइट, अगर यही सब स्पेस वो होता तो उनका सम भी जो होता वो भी उसी सब स्पेस पे होता, राइट। तो जैसे कि 8 नंबर आप देखो कि 8 नंबर जो है ना वही चीज़ डिस्क्राइब कर रहा है। सो लेट मी पिक दिस 8 नंबर। तो 8 नंबर में क्या बोल रहा है कि आपको सेम प्लेन लेना है बट ये जो है इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स कि आपका जो प्लेन नेक्स्ट प्लेन है x + y - 2z इज इक्वल टू 0 एंड दिस प्लेन विल पास थ्रू द ऑरिजिन, राइट। और ये इस प्लेन के पैरेलल होगा। तो ये एक ऐसा प्लेन है, दोनों प्लेन पैरेलल है बट ये ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा बट ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, राइट। सो अब अगर आप इस पे से कोई भी दो वेक्टर लो और अब अगर ये प्लेन ऑरिजिन से पास कर रहा है और दैट इज in the three-dimensional space, a plane passing through origin in the three-dimensional space will be a subspace of R cube, right? This is not a subspace, not a subspace, SPACE. Why? Because not passing through the origin, not passing through द ऑरिजिन। और इस तरह से बोल सकते हो कि इट डजंट कंटेन द जीरो वेक्टर स्पेस, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ सब स्पेस। तो उनका कोई भी वेक्टर ले लो, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी द इन द सेम प्लेन। अब जैसे कि इस केस में आप कोई भी दो वेक्टर लो जैसे कि जो इस प्लेन को सेटिस्फाई करते हैं, मे बी 1 1 एंड 1, राइट। सो 1 + 1 एंड -2 वुड बी 0, राइट। और क्या ले सकते हो आप, जैसे कि 1 दूसरा वेक्टर ले लो 1 -1 और 0, राइट। अब इनका सम देखो आप, सो सम विल बी 1 -1 सॉरी 1 0, सम ही कर रहे हैं ना, हाँ 1 0 एंड 1, राइट। अब कोई गलती, अच्छा यहाँ 2 होगा, व्हाट यहाँ 2 होगा ना, राइट। हाँ सो 2। अब देखो इस पॉइंट को इस पे रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कर रहा है, एकदम कर रहा है। 2 + 0 - 2 दैट इज 0, राइट। सो यू सी दिस इज अ सब स्पेस ऑफ R क्यूब पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो इस पे से कोई भी पॉइंट आप पिक कर दो, उनका सम भी जो है वो भी दैट इज गोइंग टू बी द ऑन द सेम प्लेन, राइट। अब इसको आप वेक्टर बोलो, मतलब कि ठीक है 3 कंपोनेंट्स यहाँ पे वेक्टर बोला गया बट ठीक है, वो उतना हेक्टिक नहीं लेना। सिंपली आप पॉइंट एज ए पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मैंने ये मेरा सब स्पेस है, राइट। वाई आई एम कॉलिंग इट ए सब स्पेस बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंटेन्स द जीरो वेक्टर स्पेस। और इसमें से कोई भी मैं 2 पॉइंट पिक कर रहा हूँ, अगर मैं उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी ले रहा हूँ और अगर मैं उनको ऐड कर रहा हूँ, तो जो पॉइंट मुझे मिल रहा है दैट इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइंग दिस प्लेन, राइट। बट इस केस में क्या था कि ये तो प्लेन ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा, अब ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि ये सब स्पेस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब मैंने कोई भी 2 पॉइंट लिया दैट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, राइट। अब उनका सम मैंने लिया तो यू सी दैट दिस पॉइंट इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, राइट।
ओके, दिस क्वेश्चन नंबर 9 यू शुड ट्राई द सब स्पेसेस ऑफ आर क्यूब। तो हम लोगों ने देखा था थ्योरी पार्ट में, जो हम लोग कवर कर रहे थे, द सब स्पेसेस ऑफ आर क्यूब क्या थे? प्लेन है, लाइन्स है, आर क्यूब है, आर क्यूब इट सेल्फ है, और जीरो कंटेनिंग ओनली जीरो जीरो वैक्टर, राइट। ऑल दिस प्लेन पासिंग थ्रू, और ये क्या होना चाहिए? पास करने चाहिए ऑरिजिन से, ये भी लाइन ऑरिजिन से पास करना चाहिए, और पूरा जो होल आर क्यूब है दैट इज इट सेल्फ और सब स्पेस ऑफ आर क्यूब। और जो जीरो वेक्टर है वो तो परमानेंटली किसी भी वेक्टर स्पेस में, वो सब स्पेस हो या वेक्टर स्पेस हो, ये जीरो वेक्टर उसमें आएगा ही आएगा। इसी तरह से सिमिलरली आपको डिस्क्राइब करना है सब स्पेसेस ऑफ 3 सब स्पेसेस ऑफ आर स्क्वायर एंड डिस्क्राइब ऑल द सब स्पेसेस ऑफ डी द space of 2 by 2 diagonal matrix. So already I have solved this question, but you can consider it as your homework problem. Okay, now let's look at this question number 10. The intersection of two planes passing through 0 0. So two planes are passing through the origin, right? So is probably, so what will be the intersection? So that intersection, अगर दो प्लेन जो कि ओरिजिन से पास कर रहे हैं और दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो देयर इंटरसेक्शन वुड बी अ लाइन, राइट। जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगे दैट वुड बी अ लाइन इन आर क्यूब। एंड नेक्स्ट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू। सो एक प्लेन जो है वो पास कर रहा है ओरिजिन से विथ अ लाइन पासिंग थ्रू 0 0 इज probably a point, right? So and it could be a 0 0 0, right? So ये कुछ ना कुछ खास नहीं था इसमें। ये थर्ड क्या बोल रहा है? सी इफ एस एंड टी आर सब स्पेसेस ऑफ R5। सो एस एंड टी जो है वो सब स्पेस है कोई R5 डायमेंशन का, R5 वेक्टर स्पेस का। सो प्रूव दैट देयर इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन टी, सो एस और टी क्या है? वो है आर द सब स्पेसेस। सो एस इंटरसेक्शन टी इज अ सब स्पेस ऑफ R5। सो सबसे पहली बात ये एस इंटरसेक्शन टी के बारे में बात कर रहे हैं, और एस और टी क्या है? दैट आर द सब स्पेस ऑफ R5। दैट मीन्स कि सबसे पहली बात देखो, अगर आप तो मुझे ये प्रूव करना है ना कि जो इंटरसेक्शन होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन दैट विल बी अ सब स्पेस ऑफ R5, राइट। सो अगर मैं इस चीज़ का एनालॉगस लो 3 डायमेंशनल स्पेस में, सो अगर मेरे पास कोई प्लेन है, ठीक है, दो प्लेन है और दोनों जो है वो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, ठीक है, बोथ प्लेन कंटेन्स द ओरिजिन, राइट। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी अ लाइन, राइट। तो दो प्लेन जो है वो इंटरसेक्ट जहाँ पे करेंगे दैट विल बी अ लाइन, एंड दैट लाइन विल ऑल्सो कंटेन द ओरिजिन, राइट। अब ये प्लेन जो मान लेते हैं कि ये दोनों प्लेन जो है कोई सम 3 डायमेंशनल स्पेस से बिलोंग करते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर मैं इस एस को, इस प्लेन को मैं एस मान लूँ और इस लाइन को मैं अगर टी मान लूँ, सो दीज एस एंड टी आर द सब स्पेस। और या नहीं तो मैं इस सेकेंड प्लेन को एस टी मान लेता हूँ, राइट। सो दीज एस एंड टी आर द सब स्पेस बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ऑल्सो कोई भी वेक्टर अगर हम इस प्लेन से पिक करेंगे तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी ऑल्सो ऑन दैट प्लेन, राइट। सो एस एंड टी आर द सब स्पेस ऑफ आर क्यूब। तो
अगर मैं इस इंटरसेक्शन के बारे में बात करूँ, सो एस इंटरसेक्शन टी मतलब कि जो दोनों में हो, एस में भी हो और टी में भी हो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमूव दिस वन. सो एस और टी में दोनों में हो, तो वो कौन सा कॉमन पॉइंट हो गया? वो कॉमन लाइन तो यही, ये वाला लाइन जो हो गया वो क्या हो जाएगा मेरा? एस इंटरसेक्शन टी, राइट. इससे कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता है, राइट. अगर इससे ज़्यादा कुछ मैं इधर उधर पिक करता हूँ तो वो एस पे होगा बट टी पे नहीं होगा. बट व्हाट आई हैव टू लुक फॉर इज द एस इंटरसेक्शन टी, राइट. सो एस इंटरसेक्शन टी इज द सब स्पेस ऑफ R5. तो विद दिस एनालॉजी आई थिंक वी कैन से दैट, क्योंकि आप सोचो कि अगर दो सब स्पेस है और हम उस सब स्पेस के इंटरसेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, दो सब स्पेस है और उस सब स्पेस के इंटरसेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. सो अगर हम उन दोनों के इंटरसेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे एक सब स्पेस ही मिलेगा, और वो जो सब स्पेस होगा वो छोटा सब स्पेस होगा. मतलब कि जो जितना जो दो सब स्पेस है, ठीक है. अब इस तरह से भी आप सोच सकते हो, ठीक है. जैसे कि आपके पास मान लो कि आप 2 डायमेंशनल स्पेस में हो, ठीक, और एक सब स्पेस मान लो एस जो कि लाइन है जो कि पास कर रहा है ओरिजिन से, ठीक है. दूसरा सब स्पेस मान लो आप इटसेल्फ दिस ओरिजिन को, मान लो कि वो जेड है. तो ये एस इंटरसेक्शन जेड क्या होगा इस केस में? वो सिर्फ 0 0 0 यही होगा ना. एंड दिस इज ऑल्सो अ सब स्पेस, राइट. देखो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि एस इंटरसेक्शन आपको सब स्पेस ही देगा, क्योंकि एस इंटरसेक्शन जो है वो दैट विल बी लेस, राइट. मतलब कि कॉमन पार्ट जो होगा, या नहीं तो ओके, आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट. व्हाट आई वांट टू टेल इज दैट, जैसे कि देखो अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट विल बी कि क्या ये एस यूनियन टी, कैन यू कमेंट ऑन दिस एस यूनियन टी? बट अगर एस आपका सब स्पेस है and T is also a subspace, take any dimension. So what you have to comment on this S union T. So S union T क्या एक सब स्पेस होगा? अब देखो S यूनियन T आप जो है ना इन टर्म्स ऑफ सेट सोच सकते हो, सेट थ्योरी. अगर आप S यूनियन T लोगे दैट मीन्स कि ये S तो आ ही गया, सारा पॉइंट जो S का है वो S में आ गया. और मान लो कि ये एस यूनियन जेड, इस जेड को ले रहे हैं और जेड ये ले ली, तो एस यूनियन जेड जो होगा उसमें ये जितना लाइन है रहेगा ही रहेगा, और उसमें जो ये 0 0 वाला पॉइंट है वो भी रहेगा, ठीक है. तो अब मैं पूछूंगा कि एस यूनियन टी में आपको कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है जो कि सब स्पेस नहीं है भी है, राइट. अब जैसे कि इस केस में क्या होगा कि एस यूनियन टी जो एस में है टी में है, दोनों को लेना है, राइट. So obviously S union T is not going to be the subspace, right? So here S intersection T consists of the vectors that lie in both subspaces, and check that x plus y and cx are in S intersection T if x and y are in both subspace. So simply अगर आप देखो ये S हो गया, ये अगर मेरा T हो गया, तो S इंटरसेक्शन T क्या होगा? ये वाला लाइन होगा, ठीक है. ये वाला लाइन जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, अब ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो आप कोई भी वेक्टर इससे पिक कर लो, उसको स्केल कर दो, तो यू आर गोइंग टू स्टे ऑन दैट लाइन. या नहीं तो कोई भी दो वेक्टर आप इस लाइन से पिक करो और ऐड करो, तो यू आर गोइंग टू स्टिल स्टे ऑन दिस लाइन, राइट. सो जो भी सब स्पेस का क्राइटेरिया वो फिलफिल कर रहा है, दैट मीन्स कि आई कैन से दैट दिस एस इंटरसेक्शन टी इज गोइंग टू बी द सब स्पेस, राइट. सिमिलरली वी कैन थिंक फॉर दिस, राइट. क्योंकि अगर इस एस इंटरसेक्शन इसमें जेड क्या मिल रहा है आपको? 0 0 0 मिल रहा है. आप इसको स्केल करो, यू विल गेट द 0. आप इसको ऐड करो 2 0 को, यू विल गेट द 0. सो दैट इज़ ऑब्वियस. सो दैट मीन्स कि दैट इज़ क्वालिफाइंग फॉर द
So we can extend this same idea to R to the power 5 vector space, and we can say that S intersection, if S in T is subspace, then S intersection T is going to be the subspace, right? I think it makes sense now. Now let's move to this question 14. So suppose P is a plane passing through 0 0 0. So we have some plane that is passing through the origin, right? So it contains the origin, and L is line, and L is a line through 0 0 0. So we could have here two cases, right? अगर L कोई line है, so L could be on the plane and it will pass the origin. That could be one case. Or maybe we could have a plane like this that contains the origin, right? And a line that will pass through it like this, right? So दो cases हो सकते हैं. In one case it could be line itself on the plane, or in this case line is just passing through the origin but it is not on the plane, right? So what we have been asked that the smallest vector space containing both P and L is either, so the smallest what वेक्टर स्पेस के बारे में पूछा गया है, वेक्टर स्पेस के बारे में, ठीक है? तो इस केस में अगर मेरे पास बोथ P और L जो है वो प्लेन पे है, राइट? बोथ P एंड L. सो अगर मुझे सबसे स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस डिस्क्राइब करना है दैट कंटेन्स बोथ P एंड L, सो दैट विल बी द R स्क्वायर, राइट? R स्क्वायर इस केस में द स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस कंटेनिंग बोथ P L एंड इज आइदर R स्क्वायर, और या नहीं तो अगर इस केस में आप देखो, सो प्लेन इज नॉट ऑन दी, सॉरी लाइन इज नॉट ऑन दी प्लेन, सो वी कुड हैव द वेक्टर्स that is out of this plane, right? So in this case the smallest vector space we will get is the three-dimensional vector space, that is R cube, right? Okay, now let's look at this question number 12. So that set of invertible matrices in M is not a subspace. अच्छा, अगर मेरे पास सेट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि क्या जीरो मैट्रिसेस पॉसिबल है. अगर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में अगर ये वाला और जीरो वेक्टर स्पेस सारे वेक्टर स्पेस और सब स्पेस में होना ही होना है, ठीक है? सो दिस इज नॉट इवन इन्वर्टिबल एंड वी कैन नॉट कंसिडर इन M इन दिस सब स्पेस. इस सब स्पेस में हम इस मैट्रिक्स को ले ही नहीं सकते हैं बिकॉज दिस इज नॉट अ इन्वर्टिबल, राइट? एंड इफ इट इज़ अ जीरो, ये क्या है मेरा जीरो वेक्टर स्पेस है, और एवरी कोई भी सब स्पेस हो या कोई भी वेक्टर स्पेस हो उसमें ये जीरो वेक्टर स्पेस का होना ही होना है. अब अगर ये इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का सेट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है उसमें ये है ही नहीं, तो वी कैन नॉट से दैट these invertible matrices will be a subspace, right? So zero vector is not invertible, is not invertible, so it cannot be in the set of इन्वर्टिबल मैट्रिसेस. अगर जीरो मैट्रिसेस नहीं होगा दैट मीन्स कि कोई सा भी आप 8 रूल में अप्लाई करके देख लो, आपके पास जीरो है ही नहीं तो क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते हो. सो दैट सब स्पेस इज नॉट अ सब स्पेस, राइट? दिस इन्वर्टिबल मैट्रिसेस सेट ऑफ, so this set of invertible matrices is not a subspace.
not a subspace. Okay, now coming to this part B, so that every singular matrices in M is not a subspace. So सबसे पहली बात तो कि आप सारा सिंगुलर मैट्रिसेस ले लो. अब अगर उसको आप स्केल करोगे तो आपको सिंगुलर मैट्रिसेस ही आना चाहिए. अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे देन स्टिल यू शुड गेट ए सिंगुलर मैट्रिक्स. अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिसेस का सब स्पेस पॉसिबल है. बट ऐसा होगा नहीं. कैसे नहीं होगा? देखो ये 1 0, अच्छा इसको कहाँ पे, अच्छा यहीं करते हैं. 1 0 0 0, ये क्या है? मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स है. अगर मैं इसको 0 0 0 1, ये भी क्या है? मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स है. एंड व्हाट द एडिशन विल गिव मी इज़ दिस. मतलब कि अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ एक तरह से बोले तो दिस इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. ये क्या है? नॉन सिंगुलर है. ये क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है. अब अगर ऐसा होता, अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन लेने के बाद भी मुझे नॉन सिंगुलर मिलता, सॉरी सिंगुलर मिलता, तो मैं बोल सकता था कि और फॉर एवरी सिंगुलर मैट्रिक्स. तो ये एक तो काउंटर हो गया एग्जाम्पल. तो आप सिंपली इसको बोल सकते हो द सेट ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस विद द सेट ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस दिस सो इज़ नॉट अ सब स्पेस. सो अगर सेट ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस आप ले रहे हो so they will not form a subspace, right? Okay, now coming to this question. Okay, now coming to this question number 13. so the symmetric matrices M, so symmetric matrix हम लोग इसको बोलते हैं. अगर उनका ट्रांसपोज ले तो सेम मैट्रिक्स मिल गया, दैट विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर्म अ सब स्पेस. तो आप सेट ऑफ ऑल जितने भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ले लो, सबका सेट. ठीक है, स्केल करके देखो, यू विल गेट द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. उस सेट से कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालो, ऐड कर लो, यू विल गेट अगेन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो येस, द सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस विल बी अ सब स्पेस. नेक्स्ट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज ए ट्रांसपोज. अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखते हो तो दैट शुड बी इक्वल टू द माइनस टाइम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स. So skew symmetric matrix M form a subspace. Yes, this will also form a subspace. By what logic? So आप क्या कर सकते हो? सबस्पेस होने का क्राइटेरिया क्या है कि आप अगर स्केल कर रहे हो, यू शुड गेट द, अगर किसी मैट्रिक्स, किसी स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर आप स्केल कर रहे हो, यू शुड गेट बैक द स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स आफ्टर स्केलिंग. या नहीं तो आप अगर आप उस सेट से, उस सेट ऑफ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स से किसी भी दो मैट्रिक्स या किसी भी मैट्रिसेस को निकाल करके उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हो, मतलब कि स्केल करके फिर आप ऐड कर रहे हो, सो यू शुड गेट बैक अगेन द स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स. सो इन दिस केस यू विल गेट इट, राइट? सो द अनसाइमेट्रिक मैट्रिसेस M फॉर्म्स अ सब स्पेस. सो अगर देखो अनसाइमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट मीन्स कि अगर सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नहीं फॉर्म करेगा सब स्पेस. क्यों नहीं फॉर्म करेगा? कि टू अनसाइमेट्रिक मैट्रिसेस का एडिशन साइमेट्रिक हो सकता है, राइट? तो अगर मुझे वैसा एग्जाम्पल लेना है तो मैं कैसे लूँगा? मान लेते हैं कि कोई भी एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेते हैं इधर, जैसे कि इधर 1 1 डाल दिया और इधर 2 2, तो डायगोनल के क्रॉस सेम है, ठीक है. और इधर अगर मैं हम दो ऐसा ले लेते हैं जो कि अनसाइमेट्रिकल है, तो दिस प्लस दिस, तो वो मान लेते हैं कि 0 यानी तो 2 1 0 2, ये हो सकता है. यानी तो इन दोनों को ऐड करते हैं. अब सबसे पहले तो ये क्या है? अनसाइमेट्रिकल है. ये क्या है? अनसाइमेट्रिकल है, राइट? अच्छा ये होगा क्या पहले? तो ये हो जाएगा 2 0 1 2.
राइट। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों देखो अनसाइमेट्रिकल आपको मिल क्या रहा है, साइमेट्रिकल, राइट। सो ओवरऑल पॉइंट क्या है कि ऐड करने मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद यू आर नॉट गेटिंग द अनसाइमेट्रिक मैट्रिक्स, सो दिस विल नॉट फॉर्म अ सब स्पेस, सो नो। आई होप अब जो है आपको ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो रहा होगा कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, सब स्पेस क्या होता है, राइट। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अब जो क्वेश्चन आएंगे वो बेसिकली कॉलम स्पेस पे बेस्ड होंगे, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 14. So what we have to find is about the column spaces of a matrix, right? So describe the column space of these particular matrices. So let's suppose you have this matrix A and you have two columns, right? First one, this one. So और हर एक column को हम as a vector we can think of as a column vector, right? So this is your matrix A and it has the two columns, right? और सबसे पहली बात तो ये दोनों वेक्टर कहाँ से बिलोंग करेगा, that two vector will be from the three dimensional space. Why? Because it has the three components, both have the three components. So overall जो आपका कॉलम स्पेस होगा कितने डायमेंशन में होगा, अब वो कुछ भी हो सकता है बट कितने डायमेंशन में होगा, उसका सबसे बड़ा डायमेंशन कितना होगा, जो भी कॉलम स्पेस होगा वो दैट विल बी इन आर क्यूब. So column space will be in R cube, but what will be the column space? That could be a complete R cube, that could be a R square, that could be even a line, that could even be a zero vector, and that could be anything. तो कैसे पता चलेगा मुझे, तो इन वेक्टर्स को देख करके पता चलेगा कि कॉलम स्पेस क्या होगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये वेक्टर जो है इसको मान लो V, इसको मान लो W. So this W is nothing but 2 times V, राइट। तो ये तो आपका क्या होगा कि इस थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो है ना, जैसे कि अगर मान लो ये वाई एक्सिस है आपका एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड ये आपका जेड, तो ये थ्री डायमेंशनल स्पेस हो गया वेक्टर स्पेस, राइट। बट इसमें आपका जो है कॉलम स्पेस कौन सा होगा, अगर आप देखो तो आपका जो जितने भी वेक्टर्स हैं v जो है आपका ये x पे ही रहेगा, राइट। सो दिस इज़ v, देन दिस विल बी, अगर ये v है सो w क्या हो जाएगा आपका 2 times w, राइट। अगर आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी लोगे इन दोनों का, दैट मीन्स कि 2 times सम टाइम्स ऑफ 1 एंड प्लस सम टाइम्स ऑफ वेक्टर w, तो मान लो c टाइम्स ऑफ d टाइम्स ऑफ इतना. सो अगेन आप कोई भी c पिक कर लो, कोई भी d पिक कर लो, और इन दोनों को ऐड करने के बाद ये दोनों कंपोनेंट तो हमेशा जीरो होगा, ये x वाला ही कंपोनेंट जिंदा रहेगा. बट ओवरऑल पॉइंट इज दैट आप स्केल करो, ऐड करो, लीनियर कॉम्बिनेशन लो, यू आर गोइंग टू बी इन दिस पर्टिकुलर लाइन, दैट मीन्स कि ऑन द एक्स एक्सिस ओनली. सो यही आपका कॉलम स्पेस हो गया. अगर पिक्टोरियली बात किया जाए सो दिस एक्स एक्सिस, और ये सिर्फ पॉजिटिव साइड नहीं निगेटिव साइड भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर स्केलिंग इट, राइट. सो दिस एक्स एक्सिस इज अ कॉलम स्पेस. और इस कॉलम स्पेस में कितने तरह से कौन कौन से वेक्टर आएंगे, सो कोई भी वेक्टर आएंगे जिसका एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट जीरो होगा, जेड कंपोनेंट जीरो होगा. तो दिस इज हाउ यू कैन डिस्क्राइब इट. सो नाउ अब आप इस बी मैट्रिक्स का कॉलम स्पेस के बारे में नहीं बता सकते हो, बता सकते हो, राइट. सो सबसे पहली बात तो अगेन दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, दैट इज 1 0 0 एंड 2 0 2 0, और ये दोनों वेक्टर्स के पास कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट, राइट. सो दैट मीन्स कि दीज वेक्टर बिलोंग्स टू सम 3 डायमेंशनल स्पेस. बट मुझे क्या डिस्कस करना है, मुझे डिस्कस करना है कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स बी. सो दीज आर द वेक्टर्स, कॉलम वेक्टर. एंड सो बेसिकली देखो, आप पहला जो वेक्टर होगा वो तो एक्स डायरेक्शन में होगा, दूसरा वेक्टर वाई डायरेक्शन में, वाई की तरफ. और
सो ऐसे इस टाइप का जो है ना, मतलब हम लोग बहुत पहले से पूछते आ रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन, राइट। जब मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन भी किया है तो वहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ वेक्टर, व्हाट स्पेस will get described by the linear combination of these kind of vectors, right। so let's suppose करो ये आपका x है, ये y है, ये z है। so पहला जो वेक्टर है आपका किस डायरेक्शन में, x, that means this vector with 1 0 0, and the second vector is this one, that is with the 0 2 0 component, right। अब आप क्या करो कि इसको आप स्केल कर सकते हो, राइट। स्केल करोगे तो ये वाला स्पेस पूरा मिल जाएगा, इसको 0 रखो आप y वाला को, फिर इसको आप स्केल करोगे तो ये वाला स्पेस पूरा मिल जाएगा। अब दोनों को जिंदा रखोगे, ए सी और डी को चेंज करोगे, मतलब कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे। सो व्हाट यू विल गेट इज द कंप्लीट प्लेन वाई, एक्स वाई प्लेन, राइट। ये पूरा नीचे जो आपका एक्स वाई प्लेन है वो मिल जाएगा आपको, राइट। तो ऐसा नहीं कि इस टाइप का हम लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट this is your column space, in this case column space is xy plane, right। और इस पे xy plane पे कोई भी वेक्टर्स किस फॉर्म में होगा, सो x कंपोनेंट रहेगा इसके पास एंड इट विल हैव द y कंपोनेंट, बट ये z कंपोनेंट 0 रहेगा, राइट। कोई भी वेक्टर पिक कर लो इन xy प्लेन पे, राइट। सो दैट विल बी इन दिस फॉर्म, right। I think it is clear. Now coming to this question number C, coming to this question, is this matrix C, so what will be the column space, right। so you can take it as your homework problem, and also you can let me know in the comment section what will be the, with the question number and with C, what will be the column space of this particular matrix C, right। so one column is 0 and other column has, so you can try this one. Now coming to this question number 15, for which right side, so right side means this vector, find conditions on b1 b2 b3 are these systems solvable। so ये क्वेश्चन सॉरी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अच्छा ये आप अब तो मैं नहीं बताना चाहिए मुझे कि हाउ व्हाट दिस इज रिप्रेजेंटिंग, दीज आर रिप्रेजेंटिंग। so what we have done, we have few linear system of equation and we have converted into matrix equation, and this is what we have given, right। so क्या ये system of equation solvable है, अगर है so what will be the conditions on b1 b2 b3। सो अभी ये जो ट्रांजिशन है यहाँ पे आप बहुत समझना, ये इम्पॉर्टेंट है, राइट। कि सॉल्वेबल कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, व्हाट डज इट मीन दैट सिस्टम विल बी सॉल्वेबल। दैट मीन्स कि सबसे पहली बात, उस सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है ना इसमें समझने का, ये ए एक्स, ये जो है ना मैट्रिक्स ए टाइम्स दिस वेक्टर एक्स, राइट। और कोई भी मैट्रिक्स आपके पास होगा यहाँ पे, एंड दिस इज योर वेक्टर x with the component x1 x2 x3। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि what does this matrix times this vector tells you, right। so सबसे पहली बात तो ये मैट्रिक्स के पास कुछ कॉलम होगा c1 c2 c3, राइट। और ये x वेक्टर है आपका, तो सबसे पहली बात ये x क्या बताता है कि हाउ टू कंबाइन द कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स A, राइट। सो दिस x tells you that how to combine the columns of matrix A, एंड और ये पहली बार मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत बार मैंने इस चीज़ को बताया, ठीक है। या नहीं तो आप ये बोलो, या नहीं तो ये x क्या बताता है कि हाउ टू टेक द दिस A टाइम्स x टेल्स यू दैट व्हाट विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स A। सो
A times x means linear combination of the columns of matrix A, right? So अब अगर ये कॉलम्स है मेरा और हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं एंड दिस A times x what does it give you a linear combination of columns, right? So आप एक चीज़ देखो कि इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो भी A times x होगा that will be the linear combination of columns of A, right? So आप एट द एंड कर क्या रहे हो? एट द एंड आप लीनियर कॉम्बिनेशन ही ले रहे हो कॉलम्स का, राइट? मतलब कि अगर इस स्पेस को मैं जान जाऊँ, मतलब कि कॉलम स्पेस को जान जाऊँ, ठीक है? अगर कॉलम स्पेस मुझे पता है और मुझे ये पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन लेने के बाद भी अगर मैं कॉलम स्पेस में ही रहता हूँ, राइट, सो दैट टाइम सिस्टम विल बी सॉल्वेबल, राइट? सो देखो, जब आप a टाइम्स x करोगे so you will get some vector, right? So that vector what we are calling is the b, right? अगर linear combination produce कर रहा है that vector, so that is definitely going to be the linear combination of this the columns of this matrix A, right? अब आपने कोई ऐसा b पिक कर लिया, मान लो b1 b2 b3, that is not a linear combination of the columns of this matrix A. That means कि उस टाइम सिस्टम सॉल्वेबल नहीं होगा, राइट? सो ये जो है ना, मतलब इस तरह से पता रहना चाहिए। देखो, ये तो आप सिंपल है कि आप एलिमिनेशन वगैरह अप्लाई करो एंड यू विल गेट टू नो व्हाट विल बी द कंडीशन ऑन दिस बी, बट ये चीज़ पता रहना चाहिए कि ये a टाइम्स x क्या है, ठीक है? और ये b अगर कोई वेक्टर है, तो अगर b वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लीनियर कॉम्बिनेशन है कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स A, देन दैट टाइम वी विल हैव द सिस्टम ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्वेबल। अगर b कोई वेक्टर है दैट इज नॉट इन द कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स A, इन दैट टाइम वी विल नॉट हैव द सॉल्यूशन। और उस टाइम मुझे पता ही नहीं रहेगा कि ये x मैं क्या लूँ और मैं कौन सा x लूँ सच वे कि ये इसके कॉलम्स पे एक्ट करे या इसके कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेके मुझे b प्रोड्यूस कर दे। तो x वो मुझे पता ही नहीं रहेगा और वैसा कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि उस पर्टिकुलर b को प्रोड्यूस कर सके, राइट? आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस नाउ, राइट? सो नाउ वी हैव टू फाइंड द कंडीशंस ऑन b1 b2 b3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस b1 जो भी b वेक्टर है मेरा, वो क्या होना चाहिए? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस द कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स A होना चाहिए, राइट? सो दैट मीन्स कि अल्टीमेटली, so now how we can find this condition on B? So what we can do, we can simplify our system, we can proceed for the elimination and we can look at the simplified version of our system. So सिंपली क्या करना, मुझे एलिमिनेशन अप्लाई करना है और हम लोग सिंपल वर्जन का जो है एलिमिनेशन का क्या मेन गोल रहता है, आपको सिस्टम को सिंपल करना बाय एलिमिनेटिंग द वेरिएबल्स, राइट? सो we can do the elimination. So here we have b1 b2 b3 और वो सिस्टम जो मेरे पास ux आ जाएगा, अपर ट्रायंगुलर आ जाएगा, तो वो मोर सिंपल वर्जन होगा देन ax is equal to b, right? So here what we can do is apply the, so in r2 minus 2 times r1, that will go to r1, that is the first, and in second r3 plus r1, that will go to r3. So we will have first row unaffected b1, second row here we will have 0 and यहाँ पे 0 and this will be 4 minus 4 0. So here we will have b2 minus 2 times of b1, right? Yes. In the third row here we will have 0 and 0 and 0
एंड B3 प्लस B1, राइट। यस, राइट। तो आप देखो कि अब तो एक ही एलिमिनेशन अप्लाई किया, अब सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली क्या कमेंट कर सकता हूँ कि ये जो B1 है, अब देखो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर मुझे लिखना हो तो सबसे पहली बात तो ये B1 जो है वो, तो ये चीज़ जो है, ये कंपोनेंट देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ दिस वेक्टर, राइट। और अगर आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि अगर मैं रो वाइज देखूं, राइट, तो ये रो वाइज क्या होगा, दिस ये कंपोनेंट आपको कैसे मिलेगा, ये B1 कंपोनेंट कैसे मिलेगा, जब आप इस रो को मल्टीप्लाई करोगे विद दिस वेक्टर x, राइट। मतलब कैसे आप लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे रोज का, ठीक है। तो ओवरऑल पॉइंट क्या है ना कि आपके पास कंडीशंस यहाँ पे क्या आ जाएगा कि आपको ये भी आपको जीरो चाहिए यहाँ पे इस साइड, और ये भी जीरो चाहिए, तभी आपका जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा सॉल्वेबल होगा। सो दैट मीन्स वी नीड B2 माइनस 2B1 इज इक्वल टू जीरो। अदरवाइज अगर आप इसको जीरो नहीं करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड तो आपका जीरो है। अगर आप इसको जीरो नहीं करोगे तो दैट वुड नॉट बी दैट विल बी अ इनकन्सिस्टेंट सिस्टम, राइट। और आपका B3 प्लस B1 जो है वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सो दिस इज द कंडीशंस ऑन B. So I hope you can similarly do for this option B also, this question B. Okay, now let's look at this question number. Question number 16, adding row of A, रो 1 ऑफ A to रो 2 प्रोड्यूसेस B. सो क्या किया है ना कि A मैट्रिक्स है, रो 1 और रो 2 को ऐड करके यहाँ पे ये B मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर दिया है। ये देखो ये दोनों रो सेम है, बट इस रो में क्या किया है कि ये दो और एक को ऐड कर दिया है, रो 1 को रो 2 से ऐड कर दिया और यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। और C कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, C प्रोड्यूस कर रहा है इन दोनों को ऐड करके। सो पहला रो को एज इट इज़ रखा कॉलम को, और दूसरा कॉलम को क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया और ये दूसरा कॉलम बन गया, ठीक है। सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ B और C इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। तो अब सिंपल सी बात है, अब सिंपल पूछ रहा है, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए पूछ रहा है। तो देखो अगर ए का कॉलम्स का कॉम्बिनेशन लोगे, मतलब कि व्हाट यू आर लुकिंग इट इज द कॉलम स्पेस, ए के कॉलम स्पेस को देखोगे सो और बी को देखो। सबसे पहली बात तो ये वेक्टर 1 2, राइट, 1 2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर हो जाएगा, राइट। सो ठीक है, चलो इस पर भी ध्यान नहीं देते, ए और बी में कंपेयर करते हैं। ये 1 3 है, राइट, और ये 1 2 है, राइट। सो दीज टू वेक्टर आर डिफरेंट, राइट। सो ये जो है पर्टिकुलर ओवरऑल इसमें यह पूछ रहा है ना कि इस ए का जो कॉलम स्पेस होगा क्या वो बी के कॉलम स्पेस से, बी ए और बी का कॉलम स्पेस सेम होगा, क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है, या ए और सी का कॉलम स्पेस सेम होगा। ऑब्वियसली ए और सी का कॉलम स्पेस सेम होगा, राइट। सो ए एंड सी विल हैव द सेम कॉलम स्पेस। बाय देखो ए में ये वेक्टर है, राइट। सो 1 2 कोई वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में मान लो, ठीक है। अब बी सी में भी तो वही वेक्टर है 1 2, ठीक है। सो अब ये सारे जितने वेक्टर्स हैं अदर जो है, ठीक है, जो स्पेस बन रहा है दैट विल बी ओनली अ लाइन, राइट। बट ए और सी का जो कॉलम स्पेस है वो सेम है, ठीक है। बी का, ए और बी का कॉलम स्पेस सेम क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ए का जो वेक्टर ये 1 2 सम ये डायरेक्शन लेगा और बी का जो होगा कोई अदर डायरेक्शन लेगा, राइट। सो ओवरऑल व्हाट वी कैन से, बी का भी देखो दोनों एक्वायर्ड करेगा सेम स्पेस को, बट द कॉलम स्पेस विल बी डिफरेंट, राइट, ऑफ ए एंड बी। ए और सी का कॉलम स्पेस सेम होगा,
राइट. सो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ बी और सी इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए. सो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? सी. राइट. Now, which two matrices have the same column? Which two matrices have the same column? So A and C has the same column, right? तो ओवरऑल पॉइंट यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप कॉलम्स का लीड ऐड कर रहे हो सो व्हाट यू विल गेट इज द सेम कॉलम स्पेस, राइट. अगर आप रो वाइज ऐड कर रहे हो सो कॉलम स्पेस विल गेट अफेक्टेड, राइट. So now let's move to next question, that is question number 17. So for which vector do these system have solution? So for which vector, ऐसा कौन सा हम लोग यहाँ b पिक करें, ये वेक्टर b को पिक करें such a way that I should have the solution, right? So it is simple, right? Because अगर मुझे solution चाहिए तो b should be in the column space of this matrix. सो ओवरऑल आपको यहाँ पे क्या देखना है ना कि कंडीशन ही देखना है ऑन बी, राइट. सो अब देखो ये तो पहले ही सिंपलीफाइड सिस्टम है, राइट. अपर ट्रायंगुलर में ऑलरेडी कन्वर्टेड है. सो अगर मुझे ए टाइम्स एक्स को देखना है तो कैसे देख सकते हैं हम? x1 टाइम्स 1 0 0 प्लस x2 टाइम्स दिस सेकेंड कॉलम प्लस x3 टाइम्स दिस थर्ड कॉलम एंड दैट शुड गिव मी दिस b1 b2 b3, राइट. सो अब फिर से बैक सब्स्टिट्यूशन से जाओ. यहाँ से क्या हो जाएगा? x3 इज इक्वल टू b3, राइट. एंड सिमिलरली यू कैन गेट दिस. सो फॉर एवरी, इस केस में क्या हो जाएगा? फॉर एवरी कोई भी आप b1 b2 b3 पिक कर लो, यू विल हैव द सॉल्यूशन. कोई भी b1 b2 b3 पिक कर लो. अब इसको अगर मैं कॉलम स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आप देखो, इस फर्स्ट कॉलम को देखो, सेकेंड कॉलम को देखो, थर्ड कॉलम को देखो. ऑल दीज थ्री आर इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस. जो तीनों फैक्टर्स हैं वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में है. और इनका जो स्पेस होगा, जो कॉलम स्पेस होगा, जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इन कॉलम्स का, वो क्या होगा? अगर मैं पूछूं कि इस केस में विद दिस थ्री वैक्टर्स व्हाट विल बी द कॉलम स्पेस, what will be the whole column space, the complete column space? It will be r cube, right? Because ये तीनों वेक्टर, these three vectors are capable of reaching each and every point in the three dimensional space. So कोई भी appropriate x1 x2 x3 आप पिक करो, you can reach to any point, right? So कोई भी आप ले लो b1 b2 b3, you will have definitely the solution in this case, right? Why? Because first of all the first point is that कि मेरे पास इन ये कॉलम स्पेस जो है, हर एक कॉलम वेक्टर के पास तीन कंपोनेंट है. दैट मीन्स कि जो कंप्लीट स्पेस होने वाला वेक्टर स्पेस इज गोइंग टू बी द आर क्यूब. अब मुझे देखना है कि ये कॉलम स्पेस, ये कॉलम्स वेक्टर उस आर क्यूब में कितना स्पेस एक्वायर्ड करते हैं. तो मैंने हर एक वेक्टर को देखा और मुझे पता चला कि अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लूँ सो दीज थ्री वेक्टर्स आर कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग द कंप्लीट स्पेस, राइट. नाउ दिस a times x is nothing but it tells me that how to take the linear combination. This x tells the how to take the linear combination of the columns of this a, right. And I know कि ये कॉलम वेक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट आर क्यूब को एक्वायर्ड करने वाले हैं. दैट मीन्स कि अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जाए तो आई कैन रीच टू एनी पॉइंट. तो कोई भी आप b1 b2 b3 ले लो, सो यू विल हैव द सॉल्यूशन इन दिस केस, राइट. बिकॉज कॉलम स्पेस इज एक्वायरिंग द कंप्लीट space, complete R cube, right? Now coming to this B, this one. So in this case we have the, so ये फर्स्ट वाले केस में the linear system equation is solvable for every p. So solvable for every p, कोई भी आप b कर दो, you will have this x, right? Why? तो वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया, अब नहीं करूँगा. ठीक. अब इसमें क्या है कि देखो
सबसे पहली बात तो ये B3 जीरो होना चाहिए, क्योंकि आप करके देखो ना, ये B3 जीरो होना चाहिए अगर सिस्टम को सॉल्वेबल होना है तो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जीरो है, तो राइट हैंड साइड भी जीरो होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर B3 जीरो है तो मेरे पास हम कोई ऐसा वेक्टर ले लेंगे जैसे कि B1 कुछ भी ले लेंगे, B2 और B3 हमको जीरो रखना पड़ेगा, देन आई कैन से दैट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी सॉल्वेबल, राइट। नाउ सिमिलरली you can tell me that for what will be the condition on B1 B2 B3 such that this system of equation will be solvable, right। अच्छा, एक चीज़ अब देखो, अब अगर आपको इसी को वेक्टर स्पेसेस कॉलम स्पेसेस के टर्म्स में सोचना है, ठीक है, क्यों इस केस में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव, क्यों इस केस में जो है मैं हर एक बी के लिए मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है, क्यों इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बी के लिए ही मुझे सॉल्यूशन मिलेगा जहाँ पे ये वाला लास्ट वाला जीरो रखना पड़ेगा, ऐसा क्यों। तो आप इसके कॉलम स्पेस में देखो ना भाई, ये कॉलम स्पेस इसके इनके वेक्टर्स को देखो, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक वेक्टर हो गया और ये दोनों तो सेम वेक्टर है, राइट। सो जब आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे तो दे ऑल दीज थ्री वेक्टर्स आर नॉट गोइंग टू एक्वायर द कंप्लीट आर क्यूब स्पेस, राइट। यू विल गेट अ, जो कॉलम स्पेस होगा ना, इस थ्री डायमेंशनल स्पेस में कोई एक प्लेन होगा, राइट। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो प्लेन तक ही रहेगा, वो पूरा स्पेस को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। यू कैन नॉट डिस्क्राइब द कंप्लीट आर क्यूब वेक्टर स्पेस विद दिस ऑल दिस वेक्टर्स, राइट। सो अब क्या होगा कि कुछ ऐसा बी होगा जो कि उस प्लेन पे नहीं होगा, राइट। कुछ ऐसा बी वेक्टर होगा जो कि उस प्लेन पे बिलोंग नहीं करेगा। तो इन दैट केस आप कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, यू कैन नॉट रीच टू दिस बी, राइट। अगर बी जो है उस प्लेन पे नहीं है, आप कोई सा भी x1 x2 x3 ले लो, कैसे भी कंबाइन कर लो इसके कॉलम्स को, यू विल नॉट हैव दिस बी। कब आपके पास बी होगा, जब ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर उस प्लेन पे ही होगा, राइट। ये बी जो होगा, बी वेक्टर उसी प्लेन पे होगा, देन यू विल हैव इन दैट केस सॉल्यूशन। देन आपको पता होगा कि इसके कॉलम को कैसे कंबाइन करें सच ए वे कि मुझे इस टाइप का बी मिल जाए, right। I hope it is making sense and you should be able to connect all these things, right। Okay, you can try this way, this question, and you can also think, right, these two vectors are same and सिर्फ ये कंडीशन देखो, कंडीशन निकाल सकते हो आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट यू शुड हैव मतलब पिक्चर होना चाहिए माइंड में कॉलम स्पेस का, और कैसे ये बी जो है ज़रूरी है अगर सॉल्वेबल होना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, इस बी को इस मैट्रिक्स के कॉलम स्पेस में फॉल करना पड़ेगा, तभी बी सॉल्वेबल है, ठीक है। और क्या कंडीशन होगा, सो वी कैन डू यूजिंग द एलिमिनेशन, राइट। ओके, now let me go through few of the questions from 18, 19, 20, all these questions. So you can read and try with 18, 19 and this 20 and 21 is if A is 5 by 5 invertible matrix, then the column space is dash. So A जो है आपका क्या है, 5 by 5 मैट्रिक्स है, राइट, और इन्वर्टिबल है। और इन्वर्टिबल कहने का मतलब क्या हो गया कि इट विल हैव द 5 पिवट्स, फुल पिवट्स, राइट। अगर फुल पिवट्स है दैट मीन्स कि इसके जितने भी कॉलम्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, और सारे कॉलम्स अगर इंडिपेंडेंट हैं, राइट, और 5 by 5 का है, सो आई विल हैव द 5 वेक्टर्स, राइट। और ये पांचों वेक्टर क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, कॉलम वेक्टर, एंड दीज ऑल 5 वेक्टर्स आर गोइंग टू एक्वायर द कंप्लीट डायमेंशन R⁵, कंप्लीट वेक्टर स्पेस। ये R⁵ मतलब ये 5 डायमेंशन में हर एक पॉइंट पे पहुंच सकते हैं बाई टेकिंग द एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन, राइट। सो इट्स कॉलम स्पेस इज ऑल्सो विल बी R⁵। सो इसका जो कॉलम स्पेस डिस्क्राइब्ड होगा वो क्या होगा, दैट कॉलम स्पेस is going to acquire the complete space, that is R⁵, right। Now let's look at this few of the questions from 22. So true and false with the counter example if possible. If false, the vector b that are not in the column space forms a subspace.
So B is not in the column space, right? So B column space क्या होता है, itself a सब स्पेस होता है. अगर ये B जो है उस सब स्पेस में नहीं है, उस कॉलम स्पेस में नहीं है, so that B is not going to be the sub space, right? So if B that are not in column space forms a sub space, false. This statement is false. If column space contains only zero vector, then A is a zero matrix. सो अगर कॉलम स्पेस सिर्फ जीरो वेक्टर है, मतलब कि कॉलम स्पेस सिर्फ यही है, कंटेन ओनली द जीरो वेक्टर, देन ए इज अ जीरो मैट्रिक्स. ए इज अ जीरो मैट्रिक्स. सो यस, ए विल बी ओनली अ जीरो मैट्रिक्स, राइट? बिकॉज अगर कॉलम स्पेस ही मेरे पास सिर्फ ये जीरो वेक्टर है, राइट, सो एवरी कॉलम विल गेट डिस्क्राइब्ड बाय दिस जीरो वेक्टर, और जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स ही होगा. सो दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू. द कॉलम स्पेस ऑफ 2A इक्वल्स टू द कॉलम स्पेस ऑफ A. यस, अगर कोई भी मैट्रिक्स A है आपके पास, ठीक है, तो A के पास कॉलम होगा C1 C2, राइट? तो अब 2A लो, 2A के पास क्या होगा, 2C1 2C2, और ये दोनों वेक्टर क्या है, आप वेक्टर को स्केल करो तो यू आर गोइंग टू स्टे ऑन द सेम स्पेस, राइट? सो द कॉलम स्पेस ऑफ 2A is equal to the column. Yes, this is true. The column space of A minus I equal to the column space of A. अब बात कर रहे हैं हम, अगर I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स A है, उसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दो दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो इनका जो कॉलम स्पेस होगा और दिस मैट्रिक्स A का जो कॉलम स्पेस होगा, आर दीज गोइंग टू बी द सेम? नो, दैट इज फॉल्स. सो वी विल लुक. कोई सा भी आप एग्जांपल ले लो, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो. सो अगर ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे तो ए माइनस आई विल बी 0 0, राइट? बिकॉज आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी विल बी 0. सो इनका जो कॉलम स्पेस होगा और ए का कॉलम स्पेस, ए क्या है, दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंट. तो कॉलम स्पेस ऑफ ए माइनस आई इज नॉट इक्वल टू कॉलम स्पेस ऑफ ए. So this statement is false. Now looking at this question number 23, construct 3x3 matrices whose column space contains these vectors. So कोई भी मैट्रिक्स आप ले लो, मान लो कि कोई भी मैट्रिक्स C ले लो, और उसका कॉलम स्पेस, कॉलम क्या क्या है, 1 1 0 1 0 1 एंड 1 1 1, राइट? कंस्ट्रक्ट 3x3 matrices whose column space is only a line. Construct a 3x3 matrix whose column space contains, so column space contains these but not 1 1. अच्छा, okay, so I have taken the construct a 3x3 matrix whose column space contains this vector but not 1 1 1. so कोई भी अदर वेक्टर ले सकते हैं ना, अगर 1 1 नहीं कंटेन है तो 1 2 3 ही ले लेते हैं, राइट? कंटेन्स दिस बट नॉट दिस. अगर 3x3 का करना ले सकते हैं, ये सब हो जाए. और दूसरा, अगर मुझे कंस्ट्रक्ट 3x3 मैट्रिक्स उस कॉलम स्पेस इज ओनली अ लाइन. तो अगर मुझे ऐसा कोई मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है जिसका कि कॉलम स्पेस है और 3x3 मैट्रिक्स चाहिए, और उसका जो कॉलम स्पेस होना चाहिए सिर्फ एक लाइन होना चाहिए, दैट मीन्स कि व्हाट आई विल पिक इज दिस मे बी 1 1 0 एंड 2 2 0 एंड 0 0 0. so this will have the column space only line, right? ठीक है. इफ सिस्टम 9/12 सिस्टम, ओके, सो कोई भी एक 9/12 सिस्टम है जिसके पास 9 रो है, 12 कॉलम्स है, Ax इक्वल टू बी इज सॉल्वेबल फॉर एवरी बी. और क्या बोल रहा है कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो सॉल्वेबल है. अच्छा, मतलब कि मेरे पास क्या है कि 9 क्या है, 9 रोज है ना, तो डैट मीन्स कि 9 इक्वेशंस हो गए एंड 12 अननोन्स हो गए, ठीक है? तो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इज सॉल्वेबल फॉर एवरी बी. क्वेश्चन में बोल रहा है कि हर एक बी, कोई सा भी बी आप पिक कर लो, सॉल्वेबल है. तो कॉलम स्पेस ए क्या होगा, डैट मीन्स कि कॉलम स्पेस
और बी का डायमेंशन, बी के पास कितने कंपोनेंट्स होंगे, बी के पास भी 9 कंपोनेंट्स होंगे, राइट। ये 9 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से बिलोंग करेगा, राइट। ए का जो वेक्टर्स होगा और ए का जो कंप्लीट कॉलम स्पेस होगा वो क्या होगा, इस केस में कंप्लीट 9th डायमेंशन R⁴ होगा, राइट। और ए के जो वेक्टर्स होंगे वो बिलोंग कहाँ से करेंगे, वो 9 कंपोनेंट होंगे सबके पास, तो वो R⁴ से ही बिलोंग करेंगे। बट ये जितने भी वेक्टर्स हैं, राइट, जो भी जितने भी वेक्टर्स हैं, तो मोर देन 9 वेक्टर है, बट ठीक है, जो भी ये वेक्टर्स है, दे आर कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग कंप्लीट R⁴ डायमेंशन स्पेस। मतलब कि मैं फॉर ईच बी आई कैन सॉल्व, बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन कि इट इज़ सॉल्वेबल फॉर एवरी बी, मतलब कोई भी आप बी पिक कर लो, यू विल हैव दिस एक्स, राइट। दैट मीन्स कि ए का जो कॉलम स्पेस है आर कैपेबल ऑफ रीचिंग ईच एंड एवरी पॉइंट इन डायमेंशन R⁴ राइट। मतलब ए के कॉलम्स का आप किसी तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो दैट आर कैपेबल ऑफ रीचिंग एनी पॉइंट और दैट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी बी, राइट। So column space will be R⁴ 9. Okay, now I think you would have the enough idea about the vector spaces, subspaces and the column space, right? So you can try all these questions, कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप जो है इन सारे क्वेश्चंस को रीड करो, अगर आपको सेंस नहीं बन रहा है देन यू कैन आस्क मी, राइट। सो we have done enough problem based on this vector space, subspace and the column space. So now let me say it that we are done with this chapter, that is the vector space of vector. Now in next chapter we will look this kind of system of equation, that is Ax is equal to 0, and इसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि what is null space of A, कॉलम, इस मैट्रिक्स का कॉलम स्पेस हम लोगों ने देख लिया, राइट। In next video we will talking about this kind of system Ax is equals to 0, and we will introduce this null space and we will see what is this null space actually, right. So okay, that is all in this video. We will see